Hello everybody and welcome to Raj Malhotra IAS Academy. So guys, in this particular video we are going to talk about the latest drone rules of 2021 which have been given out by the Ministry of Civil Aviation. We will discuss what exactly are drones, what are the different types of drones that exist in the market, नए rules क्या हैं जो नए 2021 के rules हैं, what has changed really, or we will also try to understand if this is a compromise on the security situation of the country. Now, if I say security, what recently has happened in Jammu is something which is a point of concern. Now, for the very first time, drones were used on the Indian soil against India in Jammu, and there were 2 explosions which happened in the Air Force base station in Jammu. तो उसको देखते हुए जो ये नए rules हैं, there were many articles which are saying that the rules now have been liberalized, so it will be easier now for people to use drones privately. तो अब जो recent situation हमने जम्मू में देखी है उसको देखते हुए is this a compromise? We will try to discuss on that part as well. First things first, what exactly are drones? Drones are nothing but unpiloted aircrafts, जिसको आप कई बार unmanned aerial vehicle भी बोल देते हो, कई जगहों पे आपको RPA भी दिखेगा. Now what exactly is RPA? RPA is nothing but a remotely piloted aircraft, right? So all of these are different names which are given to, or which UAVs are called by, or drones are called by, right? The concept as such is not new. Right, the first or the earliest drones have already have appeared in the 1900s itself. So the concept is definitely not new. What exactly do they look like? Now there are different types of drones which exist in the market, right? तो यहाँ पर आपको 2 major types दिखेंगी. एक होते हैं multi-rotor drones, एक होते हैं fixed wing drones. Multi-rotor drones can be like, there can be a particular drone with 4 multi-rotor drones or 4 rotors. उनको क्या बोला जाएगा? Quadcopter. If a particular drone is having 6 rotors, then उसको hexacopter बोल सकते हैं. Similarly, there can be octocopters also, right? So there can be different types of drones depending on the number of rotors that particular drone is using. But the second type is fixed wing drones, basically which look like a normal aircraft, जहाँ पे आपको 2 single जो simple wings हैं जो दिखी रहेंगी, and they cannot be increased or decreased, right? Now next let us move on to the range. कितनी range पर ये fly कर सकते हैं? Now this is a very important point to discuss and to understand. There can be drones which can fly up to a range of 50 kilometers. But at the same time, there can be also drones which can fly up to an area or up to a range of 600 kilometers. Now this is both a problem and and a great thing also, right? So for example, if you are somebody who plans to use drones for a right cause, then it is going to be easier for you to maybe deliver products. It is going to be easier for, suppose a company who is trying to build some infrastructure to see if everything is going fine, to see the overall view of that entire thing, of that entire project. But at the same time, since the distance is huge, it can be also used by people who want to use this for malicious reasons, for illegal reasons. For example, अगर किसी ने कुछ smuggling की activity में इन्वॉल्व होना है तो 600 किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है. Somebody sitting at a place in a forest can send a drone up to 6 kilometers away. So this can also be a problem, right? But what are the basic uses? Right, drones ज़्यादातर किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं आजकल अगर हम बात करें? So if I talk about the positive side, so a lot of companies are now using it for 3D mapping. For example, Google itself has used drones for 3D mapping. तो जितने भी आपको Google Maps दिखते हैं, काफ़ी जगह पे वहाँ पर drones यूज़ किए गए हैं. If I talk about different applications, there are many companies in the US which are using drones for product delivery. राइट, प्रोडक्ट्स को शिप करने में, डिलीवर करने में काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं. देन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, प्राइवेट प्लेयर्स हु आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर फोटोग्राफी, राइट. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट भी काफ़ी गवर्नमेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी. सर्वेलेंस टेक्निक्स के अंदर ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, एंड ऑल्सो मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर भी इनका यूज़ किया जा रहा है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हेन वर ड्रोन्स यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक कंट्री इन अ मिलिट्री ऑपरेशन, द आंसर विल बी it was used by USA in 1991 during the Gulf War. Right, so it was used way back in 1991 by USA. So the concept definitely is not new. This is something that the private players are also working on, right? If I talk about India itself,
two companies, Swiggy and Flipkart, they are already trying to use drones for product deliveries. तो वो जो एक बेसिक पायलट प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है इंडियन प्लेयर्स ने भी, राइट. बट लेट अस लुक एट द लेटेस्ट न्यूज विच वॉज देयर रिसेंटली. बोला गया कि न्यू ड्रोन पॉलिसी जो है 2021 की, इट इज़ गिवन आउट, एंड इसकी वजह से जो ड्रोन मार्केट है उसके अंदर इंडिया एक ग्लोबल ड्रोन हब भी बन सकता है बाय द ईयर 2030. Even our own Prime Minister Narendra Modi lauded this particular set of rules which were given out. उन्होंने बोला कि ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी अप्रूवल्स हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं या एंट्री बैरियर्स हैं, उनको सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस कर दिया गया है, राइट. और ये जो रूल्स हैं इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि वी ट्रस्ट आवर पीपल, it is entirely based on the premise of trust and self certification. So we trust that people will be using it for legal purposes only, right. So all of this is being said that the new rules have made it easier and cheaper to operate drones in the country. But जो point काफ़ी सारे आर्टिकल्स ने हाईलाइट किया है वो यही किया है कि अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए थे जम्मू के अंदर, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया था, लोड को ड्रॉप किया गया, थैंकफुली नोबडी लॉस्ट देयर लाइफ. बट ऐसे अटैक्स कहीं अब इस पर्टिकुलर रूल्स के चेंज होने की वजह से और भी ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेंगे. तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इस पूरे एरिया के आसपास जो है न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल. सो इट ऑटोमेटिकली becomes important for all of us, right. Now let us try to understand what are the major changes with respect to the new drone rules. So अगर हम पहले की बात करें, so we used to or the person who was required or the person who wanted to fly a drone was required to fill 25 forms which now have been reduced to only 5 forms. तो बहुत ज़्यादा accessible और easy कर दिया गया है. The type of fee which was required to pay at 72 ends now will be only required to pay at 4 ends. The quantum of fee has been reduced to nominal levels. तो बहुत ज़्यादा इसको अफोर्डेबल जो है वो कर दिया गया है. फॉर इंस्टेंस लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल. अगर हम पहले की बात करें तो एक रिमोट पायलट लाइसेंस फ़ी को 3000 रुपीज़ से रिड्यूस किया गया है टू ओनली 100 रुपीज़. एंड यहाँ पर अब साइज़ मैटर नहीं करता. सो द साइज़ हैज़ बीन डीलिंक्ड. सो इफ इट डजंट मैटर इफ यू वांट टू फ्लाई अ ड्रोन विच इज़ ऑफ 100 किलोग्राम्स और 300 किलोग्राम्स और 500 किलोग्राम्स, इसको रिड्यूस कर दिया गया है टू 100 रुपीज़ फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स, एंड इट इज़ वैलिड for 10 years now. The government is also saying that we will be working on a digital sky platform जहां पर एक user friendly single window approval system होगा. Civil Aviation Ministry ने बोला है कि इस particular system को बनाया जाएगा, and all those people who fill the forms, their approvals will be given out from that digital sky platform. Also there is now no requirement of security clearance, right. और पूरे एरिया को गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट वी विल डिवाइड द एंटायर एरिया इनटू 3 जोन्स, ग्रीन, येलो एंड रेड. तो ग्रीन जोन विल बी अ जोन जहां पर हमें कोई भी परमिशन जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी. सो पीपल हु वांट टू फ्लाई अ ड्रोन इन अ ग्रीन जोन दे डू नॉट नीड टू टेक एनी परमिशन. येलो जोन के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जो इसका पेरीमीटर है वो भी 45 किलोमीटर से रिड्यूस करके सिर्फ 12 किलोमीटर तक रख दिया है. सो अगर एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर के आसपास वाले एरिया में आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, बट देन even then you can fly your drone, right. तो इवन जो पेलोड है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया. फ्रॉम 300 किलोग्राम इट हैज बीन नाउ इंक्रीज टू 500 किलोग्राम्स, राइट. और गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि सिंस नाउ द लोड हैज बीन इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट विल ऑल्सो भी डेवलपिंग सर्टन ड्रोन कॉरिडोर्स जहां पे कार्गो डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सकता है. सो all of these are some of the major changes which I have highlighted here. But अगर हम देखें total there are somewhat close to 30 changes which have been made. So you can read all those drone rules and they will be beneficial for you to understand these things. But now इतना ज़्यादा liberalize करने की वजह से क्या कहीं drones एक threat तो नहीं बन जाएंगे, right? अगर हम बात करें drones की, there are a certain type of drone which is called a stealth drone, right? Drones which can easily evade radars, which can not be detected easily. तो इन केसेस में अगर स्टेल्थ ड्रोन्स जो हैं कुछ लोगों के हाथ लग जाते हैं तो उनको हमारे सिस्टम्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ड्रोन्स इज दैट द कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स आर इनइफेक्टिव
अगेंस्ट ड्रोन्स, बिकॉज वो इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि हमारे रडार सिस्टम्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, राइट। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्रोन स्वॉर्म्स एज वेल, जहां पर आप मल्टीपल ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली लॉन्च भी कर सकते हो एंड कंट्रोल भी कर सकते हो यूजिंग अ कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर। सो नाउ लेट अस ट्राई टू लुक एट अ सिचुएशन जहां पे लेट अस टॉक अबाउट सपोज 1000 drones enter into the Indian territory and they carry out an attack. In that case, what will happen? So इस चीज़ को देखते हुए they can be very easily used for illegal activities such as smuggling, for to carry out attacks, right? For targeting VIPs, for targeting people who are there in the crowded areas, या फिर अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट को भी टारगेट करना है तो वो भी with the help of drones can be done very easily. In this case, इंडिया किस तरह से प्रिपेयर्ड है? What is the India's counter insurgency strategy? हमारे यहाँ पर हमने कुछ सिस्टम्स को डेवलप किया है। इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन एंटी ड्रोन सिस्टम which is going to be utilized to neutralize enemy drone attacks, right? Now ये सब जो है इंडिया में डेवलप किया गया है, ये सारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जो DRDO डेवलप कर रहा है, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से निकलकर ये जो है माइंडसेट ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन, कैन बी यूज्ड टू सॉफ्ट किल अ टारगेट, कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हार्ड किल अ टारगेट। यू कैन सी दिस पिक्चर राइट हेयर, यहाँ पर आपको दोनों सिस्टम्स दिख रहे हैं, एक सिस्टम हार्ड किल के लिए यूज हो रहा है एंड दूसरा सिस्टम सॉफ्ट किल के लिए यूज हो रहा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्ट किल? द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट किल मीन्स कि आप डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो ड्रोन को, यू आर जस्ट ट्राइंग टू जैम द कम्युनिकेशन, जहां से भी उसको कंट्रोल किया जा रहा है उसकी कम्युनिकेशन को जैम करना चाहते हैं एंड देन उसको बेसिकली हार्मलेस करना चाहते हैं। बट हार्ड किल जो टेक्नोलॉजी है वहां पे इफ यू आर लुकिंग एट अ सिचुएशन जहां पे कोई पेलोड को यूज किया जा रहा है, कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन को, दैट एट दैट टाइम एंड यू वांट टू डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर ड्रोन, देन यू विल यूज द स्ट्रेटजी ऑफ हार्ड किल। तो दोनों ही कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर सिस्टम के पास हैं। इसके अलावा NSG जो ग्रुप है, NSG ने लगभग 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट 1.5 CR वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अ बैंगलोर बेस्ड एकॉर्ड एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, जहां पर प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। सो अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज देयर ऑन द इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी। बट कुछ टाइम पहले जब जम्मू में अटैक हुआ तो इजरायली स्मैश टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिले एंड मेनी आर्टिकल्स सेड दैट इंडिया शुड गो अहेड एंड परचेज दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल। इजराइल एज वी ऑल नो इज वन सच कंट्री विच इज टेक्नोलॉजिकली वेरी वेल वेरी एडवांस्ड। तो इजरायली स्मैश टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी जहां पर असॉल्ट राइफल के ऊपर एक ये डिवाइस आप माउंट कर सकते हैं एंड इस डिवाइस की हेल्प से इट विल बी ईजियर टू शूट एंड लॉक द ड्रोन्स, राइट। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन दिस पर्टिकुलर ड्रोन रूल्स, इसके अंदर एक चीज़ तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली मेंशन करी है कि आर्म्स को कैरी करना, किसी भी तरह के एम्यूनेशन को कैरी करना, किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव्स को कैरी करना या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए इसको कैरी करना अगर कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अलाउड, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट टेररिस्ट अटैक्स, नाउ इफ आई टॉक अबाउट टेररिस्ट अटैक्स, ऐसा नहीं है कि कभी इसको टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज नहीं किया गया इस पर्टिकुलर ड्रोन टेक्नोलॉजी को। लेट मी गो बैक एंड लेट मी talk about 2013. In 2013, for the very first time, Al-Qaeda tried to use drones against Pakistan, but their mission was not successful. In 2014, ISIS successfully was able to use drones in Iraq and Syria. In 2019, if I talk about the situation of India, in 2019 itself, फ्रॉम दी वेस्टर्न सेक्टर, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया की मैं बात करूं तो 2019 में 167 साइटिंग्स वर रिपोर्टेड बाय द इंडियन साइड कि हमें 167 टाइम्स ड्रोन्स दिखे हैं टू कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू द इंडियन साइड। This number significantly reduced in 2020 and the number was only 77, but definitely there was an impact of the pandemic, right? But recently अगर हम देखें, हमने अगर बात करनी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो 2019 सितंबर के अंदर जो इंडिया में पंजाब एरिया है वहाँ पे पंजाब पुलिस ने ड्रोन ने एक आर्म्स कंसाइनमेंट को जो है पकड़ा था, विच वॉज ड्रॉप्ड बाय अ पर्टिकुलर ड्रोन। एंड रिसेंटली इन जून 2020 also
वी सॉ दिस पर्टिकुलर केस गुरदासपुर के अंदर, जहां पर BSF ने दे हैड टू शूट डाउन अ पर्टिकुलर ड्रोन विच वॉज कैरिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन. सो डेफिनेटली इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी और क्रिटिकल हो जाती है, बिकॉज ये पाकिस्तानी साइड ISI and many terrorist groups which are operating from the western side, they are using this technology now against India. So it is important for India to work on an indigenous drone technology. It is important for India to check again whether this policy is fine. अगर कुछ changes इस policy में भी लगें, इन नए drone rules में भी लगें, तो उनको revise करने में ज़्यादा time नहीं लगाना चाहिए. So this is all from my side. I hope you were able to learn something new with the help of this video. For more such videos, please like this particular video. First of all, you can share this with your friends, and please subscribe to our channel. I will catch you all next week with a new concept, with a new video. Till then, take care, God bless you, and bye bye.